Assalamu alaikum. My name is Dr. Anderson Mahmood, and the topic of today's presentation is post-op endophthalmitis after cataract extraction. Endophthalmitis बहुत किस्म का होता है, but we are just referring to the post-op that occur after the cataract extraction. So post-op after cataract extraction हो सकता है, वो acute भी हो सकता है, chronic भी हो सकता है. तो बता सकते हैं acute within किस टाइम फ्रेम में होता है, chronic का टाइम क्या टाइम फ्रेम होता है acute और chronic का? नहीं, जो acute होता है acute endophthalmitis it is within 6 weeks of the surgery, और अगर 6 weeks के बाद है that is a chronic endophthalmitis. ठीक है, this is a picture of acute post-op endophthalmitis. देख सकते हैं this is a hypopyon, that is something a diagnostic hallmark of endophthalmitis. 1 2 millimeter का hypopyon है, there is a fibrin membrane and there is an IOL. So this is a case of classic case of acute post-op endophthalmitis. Now endophthalmitis हम definition तो by definition है कि it presents within 6 weeks post-op, but ये कब present करता है typically? Typically it presents within 2 to 3 days, 24 to 72 hours. 6 weeks में नहीं करता, within first week कर देता है, within 2 to 3 days कर देता है. And what should be considered the presentation is greater than 1 week. अगर आपका पहले पोस्ट ठीक है, 2 से 3 हफ्ते बाद आपका acute post-op आया है, unless virulent bacterial species और fungal pathogen है, जितना देर से आया है bacterial endophthalmitis तो आपको ये सुकून रह सकता है कि it's a less virulent organism. And what should be considered if endophthalmitis presents in less than 24 hours? अगर first post-op day पे आपका endophthalmitis है, तो it should be non-infectious. तो first day पे अगर आ गया that is a non-infectious, 2 to 7 days पे classically आता है, अगर greater than 7 days है, तो it's a less virulent organism. अच्छा, and what is the name of the other name of the non-infectious? We all know that is the toxic and tear segment syndrome, due to TAS है. अब कौन से organism को बता सकते हैं the most common organism that causes acute post-op endophthalmitis? नहीं, Boreas नहीं. The most common is Coagulous negative staph, that is Staphylococcus epidermidis. That causes 70% of that. उसके बाद Staph aureus है, उसके बाद Streptococcus species है. मगर 70% of the endophthalmitis is caused by Coagulous negative gram-positive Staphylococcus epidermidis. ठीक है. And what is the source of these bugs? Most common source है ocular surface, lids and lashes. Endophthalmitis का सबसे बड़ा cause है patients on lids and lashes में जो flora है, that causes the endophthalmitis. And which bug is most common? That is a Coagulous negative. Which specific bug is this? Staphylococcus epidermidis. 70% is caused by this. As you know, 70% of the post-op endophthalmitis is caused by this organism. What typical time frame क्या है? ये जो Coagulous negative staph है, ये भी less virulent as compared to Staph aureus and Streptococcus species. मगर शुक्र है, it causes more, but it is less virulent. It comes in 4 to 7 days. और अगर second day पे permanent end off है, तो it is most likely Staph aureus या Streptococcus species है, क्योंकि they are more virulent but less management है. Management of the endophthalmitis is classically dictated by endophthalmitis vitrectomy studies, जो early 80s या early 90s में एक study conduct हुई थी. This is the endophthalmitis vitrectomy study. इसमें 2 questions आपके. With respect to the management of post-op endophthalmitis, what is the role of PPV and how effective are systemic antibiotics? ये 2 questions किए गए थे जो है इस स्टडी में, इन 2 चीज़ों का रोल है. And in evaluate और PPV को evaluate करने में it was compared to standard treatment, that is intravitreal antibiotics. ठीक है. What did the study show with respect to PPV efficacy? उसने कहा था एक चीज़ था, depends on the visual acuity. Visual acuity सबसे important hallmark है कि if the visual acuity was light perception or worse, visual outcome is better than with PPV. और अगर वो light perception से बेहतर है तो the PPV intravitreal antibiotics का और उसमें कोई फर्क नहीं है. तो most important characteristics जो EVS में देखना है वो है आपने visual acuity and first day. और जो EVS स्टडी करती है कि आपने एक स्टैंडर्ड तरीके से उसकी visual acuity करनी है. जो विजुअल एक्टिविटी करनी है वो स्टेनल पे नहीं करनी है, ETDRS चार्ट पे करनी है. और ETDRS चार्ट पे कितने डिस्टेंस पे विजुअल एक्टिविटी होती है? 4 मीटर पे. स्टैंडर्ड नहीं होती, 4 मीटर पे होती है. अगर वो आपकी लाइन नहीं पढ़ रहा तो आपने उसे 1 मीटर पे लेके आना है और उसे कहना है कि कितनी उंगली है. इसका मतलब काउंटिंग फिंगर भी नहीं है. फिर आपने उसको हैंड मोशन के लिए 60 सेंटीमीटर्स पे लेके आना है अपने आप से, और फिर उसे हैंड मोशन 5 दफ़ा करना है बस. अगर 5 में से उसने 4 दफ़ा सही बताया तो फिर हैंड मूवमेंट, अगर 2 दफ़ा भी सही बताया तो हैंड मूवमेंट नहीं है.
है, अगर नहीं आ रहा तो आपने डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप की लाइट से लाइट परसेप्शन चेक करनी है, टॉर्च से नहीं करनी, डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोप की लाइट से चेक करनी है। अच्छा, व्हाट डिड द स्टडी शो अबाउट द सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स एंड रियल आउटकम? कि हम सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स दे के नहीं, उससे कहते हैं इंट्रावीनस एंटीबायोटिक्स डिड नॉट इंप्रूव द फाइनल रियल आउटकम। तो आप उसको इंट्रावीनस एंटीबायोटिक्स दें या दें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इसका जो था वो कंट्रोवर्शियल क्यों था? क्योंकि द एंटीबायोटिक्स यूज्ड इन द EVS वाज सेफ्टेजिडीन एंड एमिकासिन, ये दो हुई थी, और वेंकोमाइसिन नहीं यूज हुई थी इंट्रावीनस। तो जो उस पर अब उस पर जो आती है क्रिटिसिज्म कि जो दो एंटीबायोटिक्स दी थी उसका ग्राम पॉजिटिव कवर अच्छा नहीं था, और जो ग्राम पॉजिटिव कवर अच्छा वेंकोमाइसिन का है, और ज़्यादा एंडोथर्माइटिस वेंकोमाइसिन ही करता है। दिस वाज अ lacuna in that study. Now, a patient comes 6 months prior presents with endophthalmitis, should EVS study dictate? अगर the EVS only और only है for acute endophthalmitis के लिए, chronic endophthalmitis के लिए EVS study should not dictate the management. और अगर ट्रैप के बाद भी है उसके बाद भी नहीं है, सिर्फ EVS study should dictate the management of acute post of endophthalmitis, ना chronic endophthalmitis की और ना ही जो है ब्लड रिलेटेड एंडोथर्माइटिस की। अच्छा, अब जो क्रॉनिक एंडोथर्माइटिस है ये आता है विद 6 वीक्स और ग्रेटर देन 6 वीक्स। इसका जो पैथोजन है मोस्ट कॉमनली दैट इज अ प्रोपाइनोबैक्टीरियम एक्नी, दैट इज आल्सो ग्राम पॉजिटिव रॉड है, ये P एक्नी, एंड इट इज क्लासिफाइड एज अ ग्राम पॉजिटिव रॉड एंड इट इज पार्ट ऑफ अ नॉर्मल फ्लोरा। एवरेज टाइम ऑफ सर्जरी कितना प्रेजेंट करता है? इट प्रेजेंट बिटवीन 3 to 4 months, 2 weeks to several years है। ये ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन करता है, और स्टेरॉइड से इसका, क्योंकि क्रॉनिक ग्रैन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन है तो इससे ये द इन्फ्लेमेशन विल लेसन, और जब आप स्टेरॉइड स्टॉप करेंगे एकदम दोबारा वर्सन हो जाएगी क्रोनिक एंडोफ में। ये पेरिफेरल वाइट प्लेग आता है। दिस इज अ पेशेंट विद हैव क्रॉनिक एंडोथर्माइटिस। ये वाइट कैप्सूल्स हैं, प्लेग्स एंड कैप्सूल, और ग्रैन्युलोमेटस केपीज हैं। तो अगर आप मिस करके याद करेंगे तो दिस विल कन्वर्ट टू क्रॉनिक एंडोथर्माइटिस। This is a classic case of a plaque that is containing propionibacterium acne, and that this can cause a chronic endophthalmitis. ठीक है? Now, intraocular antibiotics are usually not helpful, and तो आपने इसमें chronic endophthalmitis में, so the treatment of choice is a PPV and capsulectomy, और कभी-कभी you have to remove the IOL complex, और अगर दोबारा हो तो you have to remove the IOL। तो chronic endophthalmitis में treatment of choice is a PPV with removal of the bag and IOL। फंगस भी कर सकता है, मगर आई विल स्किप इट। फंगस बहुत ज़्यादा नहीं करता, हमारे में जो उधर वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत ज़्यादा करता है। इसमें जो क्लासिकल फाइंडिंग है ना, जैसे अगर आपको फंडस पे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स टाइप मिल रहा है, दिस इज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, दैट इज अ फंगल एंडोथर्माइटिस। ठीक है, मगर यहाँ इतना कॉमन नहीं है फंगल एंडोथर्माइटिस। उसमें भी आपने ट्रीट करना है, एंटी फंगल्स में से कोई रोल नहीं है, मगर आपने उसे इंट्रावेट्रियल फ्लूकोनाजोल लगाना है। अच्छा, अब आ गया एक्यूट पोस्ट ऑफ एंडोथर्माइटिस का पेशेंट आ गया। हाउ वुड यू प्रोसीड? सबसे पहले आपने प्रोसीड करना है बाय ऑब्टेनिंग एक्वस एंड विट्रस सैंपल्स कल्चर के लिए, स्टेन के लिए। विच 3 कल्चर्स मीडिया शुड बी? जो भी आपने अगर एंडोथर्माइटिस की ट्रीटमेंट करनी है तो सबसे पहले आपने टैप एंड इंजेक्ट करने से पहले उसका कल्चर लेना है, और उसको 3 जगह कल्चर भेजना है, एरोबिक, एनारोबिक एंड फंगल, और 2 स्टेन्स, ग्राम स्टेन एंड जिम्सा स्टेन। इसमें से बेहतर कौन सा है? इसमें से स्टेनिंग बेहतर है, क्योंकि कल्चर तो आएगा 21 दिन बाद, 28 दिन बाद, मगर जो स्टेनिंग है वो आपको विद 2 to 3 आवर्स आ जाएगी। तो आपने विच इज ऑफ ग्रेटर यूटिलिटी, कल्चर और स्टेन्स। ज़्यादा यूटिलिटी है दैट इज ऑफ द स्टेन्स, तो आपने स्टेन करना है, उसका कल्चर नहीं करवाना। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट टू बी नॉन इन्फेक्शियस केसेज पोस्ट ऑफ एंडोथर्माइटिस। कभी कभी जरूरी नहीं है कि सिर्फ पोस्ट ऑफ एंडोथर्माइटिस ना, उसके 3 DDs हैं जो हमेशा याद रखने हैं। दैट इज द रिटेन लेंस फ्रेगमेंट, वो भी वाइटिश आपको रिफ्लेक्स देगा उसके अंदर, और एंटीरियर सेगमेंट के अंदर भी, तो आपने इसको रूल आउट करना है। आईओ रिलेटेड इश्यूज के अगर एंटीरियर सेगमेंट में है या सर्कस में है जिसको कांस्टेंट इरिटेशन करना है, या ओल्ड एज में इंट्राओकुलर लिम्फोमा। UGH स्टैंड्स फॉर यूविएटिस ग्लूकोमा हाइफीमा। ये जब ओल्ड जब 1970s 80s में जब कैटरेक्ट सर्जरी थी तो ACIOL डलते थे, तो दैट इज वेरी कॉमन। दैट इज अ यूविएटिस ग्लूकोमा एंड हाइफीमा, दैट इज अ कॉम्प्लिकेशन दैट इज रिलेटेड विद the presence of an anterior chamber IOL. This is an ACIOL, and that is rubbing against the anterior chamber anal structures, that is causing hyphema.
कभी कभी ये भी इन्फ्लेमेशन इतनी ज़्यादा करता है कि वी कैन नॉट डिफरेंशिएट कि डी एच एम्बराइवल की वजह से यूजीएच है या एंडोफर्माइटिस है, मगर लकीली आजकल इतना कॉमन नहीं है डी एच एम्बराइवल. सो द मोस्ट कॉमन डिफरेंशियल इज अ रिटेन लेंस फ्रेगमेंट कॉजिंग इन्फ्लेमेशन इन केस ऑफ एंडो. सबसे इंपॉर्टेंट रहता है व्हाट आर द मेन रिस्क फैक्टर्स. द मेन रिस्क फैक्टर्स आर पीसीआर, prolonged surgery time, retained lens fracture, clear corneal incision, sutureless incision and a wound leakage on post-operative. इन 6 में से सबसे ज़्यादा कौन सा है फैक्टर that causes endophthalmitis? Which factor सबसे ज़्यादा? That is a wound leak on post-operative. That increases the 44% chances of causing endophthalmitis. एक नॉर्मल स्टडी कहती है कि अगर wound leak आपका फर्स्ट पोस्ट-ऑपरेटिव, it increases relative risk at 44% chances increase है. And second most is a capsular rupture. अगर PCR है तो that also occurs, क्योंकि अगर PC इंटैक्ट है उसमें रेंट नहीं है. हर एक ऑर्गेनिज्म की इन्फेक्शियस डोज होती है, डोज जिस पे जाके वो एक डिजीज मैनिफेस्ट करता है. स्टेफिलोकोकस एपिडेर्माइटिस जो एंडोफ्थल्माइटिस करता है ना, अगर हमारा PCR नहीं है, PC इंटैक्ट है, तो 1 मिलियन ऑर्गेनिज्म शुड रीच द टीएच चैम्बर और विट्रस टू कॉज एन एंडोफ्थल्माइटिस. और अगर PCR है तो व्हाट इन्फेक्शियस डोज की कितनी है? ओनली 10 ऑर्गेनिजम्स. कहाँ 1 मिलियन, कहाँ 10. सो यू नीड ओनली 10 ऑर्गेनिज्म. लिखा है कि दिस इज नॉट अ टाइपो मिस्टेक. ओनली 10 ऑर्गेनिज्म नीड्स टू गेट इन द विट्रस टू प्रोड्यूस एन इन्फ्लेमेशन. तो अगर PCR है तो मेक श्योर देयर इज नो विट्रस एंड यू सुचर द वुंड. नॉन इन्फेक्शियस एंडोफ्थल्माइटिस भी हो सकता है, जो फर्स्ट पोस्ट टिपिकल आता है वो नॉन इन्फेक्शियस है. 4 words that this is known as toxic ear segment syndrome. Time to presentation within first day. Key differentiation is the marked corneal edema, that is limbus to limbus corneal edema. That is a limbus to limbus corneal edema. अगर आपके पास first post पे है, that is most likely a TAS, है ना? ये इसकी causes की हैं. सबसे ज़्यादा causes के viscoelastics हैं जो हमारे पास denatured हैं, preservatives हैं, intracameral solutions हैं, IOL issues हैं, sterilization या coating अच्छी नहीं है, या contamination of equipment with endotoxin. How the diagnosis is made? It's a diagnosis of exclusion. Endophthalmitis in the absence of positive cultures and stain. अगर आपने culture की है तो ये is a diagnosis of exclusion. How it is treated with steroids. This is हम comparison करने लगे हैं between a TAS and acute bacterial endophthalmitis. Onset. Onset अगर less than 24 है, most likely this is TAS. Greater than 2 days है endo. Corneal edema. अगर profound है, limbal to limbal corneal edema, this is TAS. अगर mild corneal edema, central corneal edema, usually this favors endo. Vitritis. Hallmark of endophthalmitis is vitritis. There is a never vitritis in TAS. और acute bacterial endophthalmitis में there isn't found in endophthalmitis. So B-scan is very important. Response to steroids, dramatic in TAS में और acute bacterial endophthalmitis में, that is equivocal. और pain. Pain is very very severe in acute bacterial endophthalmitis. TAS के पेशेंट में इतनी पेन नहीं होती. Do intracameral, अब सबसे पहले है कि हम इसको प्रिवेंट कैसे करना है. Do intracameral antibiotics reduce the risk of endo. ये एक स्टडी हुई थी यूरोपियन ECRS में कि intracameral antibiotics reduce करती हैं, तो कहना है 5 times reduces the risk. Possible. What is the only pre-operative proven to reduce endophthalmitis दुनिया में आज तक जिसकी P value है that is statistically significant is Bovidin iodine solution. सिर्फ एक स्टडी जो प्रूव करती है that is 5% iodine solution on the conjunctiva and 10% on the skin for 3 to 5 minutes. This is the only thing that will for sure reduce the rate of endophthalmitis. 3 to 5 minutes होगा तो कम होगा. And why? और प्रोस्थेटिक आई अगर ओनली आई पेशेंट है या प्रोस्थेटिक आई गरीब है दूसरे पेशेंट में, तो प्रोस्थेटिक आई निकाल के आपने सर्जरी करनी है. उसको निकाल के उसको वॉश करके प्रोस्थेटिक आई कंटेन्स बैक्टीरिया, आपने उसके साथ उसकी सर्जरी नहीं करनी. टेक इट आउट एंड क्लीन इट और फिर लगानी है. और सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स, ये हमारे पास पेशेंट बहुत ज़्यादा ओपीडी में आते हैं CKD के साथ, या उनके डायबिटिक होते हैं, कैटरेक्ट भी हो रहा होता है, डायलिसिस भी हो रहे होते हैं. सो इफ द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम अ CKD और एनी इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज, तो यू शुड स्टार्ट अ सिप्रो प्री-ऑप. और प्री-ऑप एंटीबायोटिक और स्टार्ट करने का कोई क्राइटेरिया नहीं है. सिर्फ अगर इम्यूनोसप्रेशन है, डायबिटीज कंट्रोल नहीं है, 500-600 है, वो तो हम करते नहीं है. मगर अगर CKD का पेशेंट है जिसकी होनी है, CKD तो नहीं हम खत्म कर सकते, तो यू शुड स्टार्ट अ प्री-ऑप सिप्रोफ्लॉक्सासिन इन दिस पेशेंट.
एक और चीज़ है कि इंट्रा कैमरल सिफोरेक्साइन दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। वो कहते हैं कि जो यूरोपियंस कहते हैं कि हम उसको इंट्रा कैमरल सिफोरेक्साइन देते हैं और हमारे एंडोसल्फामेटस रेट कम है। अमेरिकन कहते हैं हम प्री ऑफ मॉक्सिफ्लॉक्सासिन चला देते हैं। तो दोनों में कंट्रोवर्शियल है कि आप दोनों कर सकते हैं, दोनों स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है, बट दोनों में 5% रेट कम हो सकते हैं। तो इन दोनों में से आप एक प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ तो आप इंट्रा कैमरल से सिफोरेक्साइन दे दें या 3 डेज प्री ऑफ आप उसे मॉक्सिफ्लॉक्सासिन चला दें। एक अमेरिकन तरीका है और एक यूरोपियन तरीका है। आपने इट्स अ कॉम्प्लेक्स एंड कंटेंशियस इशू, ये चलता रहेगा, मगर दोनों में से आप एक चीज़ कर सकते हैं, या आप इंट्रा कैमरल सिफोरेक्साइन चला दें, और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ एंडोसल्फामेटस में है कि वो इंजेक्शन है। तो कहते हैं कि अगर आपके पास सर करते हैं विट्रेक्टमी, अगर आपके पास पीएल के साथ पेशेंट आया है, तो अगर आप टैप एंड इंजेक्ट करके उसकी विट्रेक्टमी करेंगे या स्ट्रेट विट्रेक्टमी करेंगे तो वील एक्विटी में क्या फ़र्क आएगा। तो लेकिन अगर आप टैप और इंजेक्ट करके एक दिन बाद विट्रेक्टमी करेंगे तो ओनली 11% पेशेंट विल गेट अ 612 वीएन, और अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड विट्रेक्टमी करेंगे तो इट विल 33% विल गेट 612 वीएन। तो डोंट वेट फॉर इंजेक्शंस इन अ पेशेंट जिसकी पीएल वीएन है। और दूसरी जो है इंट्राविट्रियल जो है हमारे पास एंटीबायोटिक दैट इज रेटिनल टॉक्सिक। तो एक स्टडी एक है कि 3 के बाद 3 इंजेक्शन के बाद देयर इज 100% रेट ऑफ मैकुलर इन्फाक्शन रेटिनल इस्कीमिया। जिसको 3 इंजेक्शन लग गए हैं उसकी सब कुछ भी क्लियर हो चुकी है, नहीं बनेगी। सो डिसाइड कि आपने 1 या 2 के बाद विट्रेक्टमी करनी है कि नहीं करनी, और दूसरे के बाद यू शुड नॉट गो फॉर थर्ड, मैक्सिमम 2 और पॉसिबली सिर्फ 1 लगाना। थैंक यू। So, but we are concentrating on the endophthalmitis appearing after cataract surgery. अब सबसे पहले जो आती है वो एंडोफ्थल्माइटिस विट्रेक्टमी स्टडी, मल्टी सेंटर रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, जिसने पहली दफ़ा एंडोफ्थल्माइटिस को टैकल किया साइंटिफिक बेसिस पे, और इन्होंने ये कंक्लूजन किया कि जी सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स का रोल नहीं है। लेकिन 95 में इन्होंने पब्लिश किए थे, पुरानी हो गई है। बहुत सारे ऑब्जेक्शंस आए हैं इनकी स्टडी पे। क्या है? एक तो ये है कि इन्होंने जो पीएल नेगेटिव केसेस थे वो एक्सक्लूड कर दिए, जो फुलमिनेंट केसेस थे, जो विरुलेंट ऑर्गेनिजम्स के थे, वो निकाल दिए। सेकेंडली इन्होंने एक पॉलिसी बनाई कि जी पीएल पॉजिटिव वाले को हम करेंगे, विट्रेक्टमी करेंगे। तो ये एक उनका क्राइटेरिया था सिलेक्शन का, इट वाज नॉट अ कंक्लूजन। थर्ड, जिस तरह उन्होंने बताया कि जी इंट्राविट्रियल एंटीबायोटिक्स और थी, सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स और थी। इन्होंने कहा कि 70% कोएगुलेज नेगेटिव स्टेफ एपिडर्मिडिस होते हैं जो कि एंडोफ्थल्माइटिस करते हैं। तो भाई जो विरुलेंट ऑर्गेनिज्म थे स्टेफ ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस और ग्राम नेगेटिव बैसिलाई, वो तो आपने निकाल दिए जो फुलमिनेंट केसेस थे। अगर वो भी शामिल करते तो परसेंटेज कुछ और होती है। दूसरा, जो सिस्टेमिक एंटीबायोटिक आईवी यूज थी वो ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट तो इफेक्टिव ही नहीं थी। तो आप कैसे कहते हैं कि सिस्टेमिक का रोल नहीं? आइडियली हमें वो एंटीबायोटिक देनी चाहिए जो कि ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट इफेक्टिव हो, जैसे वैंकोमाइसिन, और वही इंट्राविट्रियल भी देनी चाहिए। जब आप एक ड्रग्स इंट्राविट्रियल और सिस्टेमिकली देते हैं तो जो इंट्राविट्रियल कंसंट्रेशन होती है वो सिस्टेमिक की वजह से ऑगमेंट होती है, मेंटेन रहती है, पोटेंशिएट होती है बिकॉज ऑफ द स्टेम। सो ये भी एक फ्लॉ है उनकी स्टडी में। सो आपसे एग्जाम में अगर कोई पूछे तो आप यही कहेंगे कि ईवीएस स्टडी जो एंडोफ्थल्माइटिस विट्रेक्टमी स्टडी के मुताबिक सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स नहीं कोई रोल प्ले करते, लेकिन ये प्रॉब्लम्स हैं उस स्टडी में, इसलिए हम तो देखें। ठीक है। एक और प्रॉब्लम ये है, अब मॉक्सीफ्लॉक्सासिन है वो नई आई है और उसकी इंट्राऑकुलर पेनिट्रेशन बहुत अच्छी है, उस ज़माने में थी नहीं। तो वो सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स वो कर नहीं सके, उनका कंक्लूजन ठीक नहीं था कि जी इसका रोल नहीं। अब ये जो फैक्टर्स हैं कि इन्फेक्शन होगी कि नहीं, ये डिपेंड करता है। नंबर 1, डोज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कितनी डोज में गए। एक इंस्ट्रूमेंट स्टेरलाइज ठीक नहीं था या 10 इंस्ट्रूमेंट स्टेरलाइज ठीक नहीं, इन्फेक्शियस डोज कितनी है। नंबर 2, द
टाइप ऑफ बैक्टीरिया विरुलेंट है, जल्दी रेप्लिकेट करेगा, विद इन 24 आवर्स वो अगले दिन आप पट्टी खोलेंगे तो वो इन्फेक्शन हुई होगी। अगर विरुलेंट नहीं है तो वो 3 दिन 5 दिन के बाद आएगा, 10-15 दिन के बाद आएगा। नंबर 3, आपने एंटीबायोटिक्स यूज़ किए हैं कि नहीं किए। अगर आपने एंटीबायोटिक्स यूज़ किए हैं तो डिलेड प्रेजेंटेशन होगी, थोड़ी देर दबा के रखेगी एंटीबायोटिक और बाद में आएगा वो। अगर आपने एंटीबायोटिक नहीं इस्तेमाल की वो जल्दी आ जाएगा। इम्यूनो सप्रेशन ऑफ द होस्ट, एक बंदा डायबिटीज वाला है उसमें जल्दी आ जाएगी एंडोथेलियोमाइटिस, फुलमिनेंट होगी, स्टीरॉइड ले रहा है, इम्यूनो सप्रेशन हुई है, किडनी ट्रांसप्लांट वगैरह है, किसी भी वजह से स्टीरॉइड ले रहा है, तो जो होस्ट का अगर इम्यूनो सप्रेशन है इन्फेक्शन जल्दी होगी। सो ये 4-5 फैक्टर हैं जो डिटरमिन करते हैं। अब देखा ये गया है कि जो कंजक्टाइवल सैक में बैक्टीरियल फ्लोरा है 30% केसेस में वो आई के अंदर चला जाता है एट द एंड ऑफ ऑपरेशन, लेकिन इन्फेक्शन जो होती है वो बहुत कम में होती है। सो एंटीरियर चैम्बर में ऐसी इम्यून एक्टिविटी चल रही है कि वो बहुत सारे बैक्टीरिया को किल कर रही है। ठीक है, क्या इंसिडेंस एंडोथेलियोमाइटिस का इस वक्त मैक्सिमम जो है 1000 में से 2 और 10,000 में से 4, ये आप याद रखें। 0.04% to 0.2% ये इंसिडेंस है एंडोथेलियोमाइटिस का। तो अगर आपके केसेस ज़्यादा हो रहे हैं तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत है। अगर 10,000 में से 2 केसेस से ज़्यादा आपकी इन्फेक्शन होगी, इसका मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से आप पीछे रहेंगे। सो क्या चीज़ है जो कि वुंड में से बैक्टीरिया को एंटर होने से रोकेगी? उसमें एक तो पोविडीन आयोडीन सोल्यूशन है 10%। अच्छा, इसमें सोल्यूशन और स्क्रब की बोतल बिल्कुल एक जैसी। स्क्रब में साथ सोप होता है, वो आप अपने हाथ पे अप्लाई करते हैं, अगर आप आँख में डाल देंगे सारे कॉर्नियल एंडोथीलियम उड़ जाएगी, ज़्यादा देर तक वो रहेगा और आप तो अंदर चले जाएगा, टास हो जाएगी। सो आपने जो आई में यूज़ करना है वो पोविडीन आयोडीन सोल्यूशन यूज़ करना है 5% कंजक्टाइवल सैक में और 10% स्किन में। और पोविडीन आयोडीन जो स्क्रब होती है वो आपके हाथ साफ करने के लिए है, डिसइंफेक्शन की। The second important thing is to clear the eyelashes of the feet. आप लोग प्लास्टिक स्टेराइल शीट लगाते हैं ऑफसाइड, उसको जो लिड मार्जिन है और आई लैशेज है उनको कवर करना चाहिए। आपके जो इंस्ट्रूमेंट है वो आई लैशेज से होनी चाहिए, क्योंकि उसकी स्टेरलाइजेशन मुमकिन नहीं है आई लैशेज। राइट, सो हम देख रहे हैं कि वूंड ही अब बार बार वूंड में आप इंस्ट्रूमेंट एंटर कर रहे हैं, वूंड डिस्टॉर्ट हो गया है। एट द एंड ऑफ द ऑपरेशन अगर हाइपोटनी रह गई तो वो नेगेटिव प्रेशर होगा, वो कंजक्टाइवल सैक में जो फ्लूइड है वो सक इन हो जाएगा, ज़्यादा चांसेस है एंडोथेलियोमाइटिस। सो एट द एंड ऑफ द ऑपरेशन द वूंड ऑफ द कैटरैक्ट सर्जरी शुड बी अप्रॉक्सीमेटेड विद हाइड्रेशन एंड इट शुड बी एयर टाइट। इंट्राऑक्यूलर प्रेशर नॉर्मल होना चाहिए एट द एंड ऑफ ऑपरेशन। अगर लेस होगा तो वो फ्लूइड सक करेगा। आप महसूस करते हैं कि वुंड्स प्योर नहीं है, एक स्टिच अप्लाई कर दी, 2-4 हफ्ते बाद निकाल दे, लेकिन एट द एंड ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑपरेशन वो आपका वुंड जो है वो एयर टाइट होना चाहिए। तो ये जो आपको बताई हैं सिम्टम्स, इनमें से कोई हो सकती है और कोई नहीं हो सकती। कोई ऐसी 100% वाली बात नहीं कि पेन, डिक्रीज्ड विजन, एसी रिएक्शन, लॉस ऑफ फंडल ग्लो, हाइपोपियन, ये सारी क्लिनिकल फीचर्स हैं और ये 70-80% में हर एक होती है। तो ये नहीं है कि कोई एक चीज़ जो है वो इंडिकेट करेगी कि एंडोथेलियोमाइटिस हो गया। तो जब मैं ऑपरेशन करता हूँ तो पेशेंट को कहता हूँ, अगर आपको जो आप सूरत हाल है पहले दिन ड्रेसिंग खोल के हम देखते हैं और बताते हैं कि जी ये सूरत हाल ठीक है। अगर आपको पेन ज़्यादा हो, नज़र आप महसूस करें कम हो रही है, सुर्खी ज़्यादा हो रही है और ये इन 3 चीज़ों में से कोई सी चीज़ फ़ौरन आ जाए हमारे और उसको फिर हम डील करें। अब डील करने के लिए जो बेस्ट तरीका है वो यही है, अल्ट्रासाउंड आप करा लें अगर आपने विट्राइटिस को डॉक्यूमेंट करना है, वरना क्लिनिकली आप इंटीरियर
चैम्बर देखते हैं और सेल्स आपको नज़र आ जाती है, रिएक्शन नज़र आ जाता है। टास्क की डिफ्रेंशिएशन बड़ी उन्होंने अच्छी बताई है। टास्क जो होती है ना, वो कोई केमिकल इरिटेंट इंट्राओकुलर रह गया और उसने रिएक्शन किया और वो विद इन 12 और 24 आवर आ जाता। यानी 12 घंटे के बाद देखें रिएक्शन है तो ये टास्क है। एंडोथेल्माइटिस क्यों नहीं है? क्योंकि एंडोथेल्माइटिस में बैक्टीरिया ने टाइम लेना है रेप्लिकेट करने में, तो 24 आवर से पहले नहीं आता। 12 घंटे के बाद अगर रिएक्शन है तो वो टास्क है, एंडोथेल्माइटिस नहीं है। टास्क को आप स्टीरॉइड से ट्रीट करते हैं, एंडोथेल्माइटिस को आप एंटीबायोटिक से ट्रीट करते हैं। सो बेस्ट थिंग इज टू टेक द एक्वस सैंपल एंड द विट्रियस सैंपल। अगर तो सिरिंज सक्शन के साथ आप ले लें तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा तो फिर विट्रियस कटर डाल के आप थोड़ा सोल्यूशन लेते हैं और उसको भेज देते हैं आप लेबॉर्ट्री फॉर ग्राम जिम्जा और कल्चर के लिए। लेकिन आप एंटीबायोटिक्स उसी वक्त इंजेक्ट कर देते हैं जिस वक्त सस्पिशन होती है। आप एक सिस्टेमिक एंटीबायोटिक शुरू कर दें, दूसरा आपने ये इंट्राविट्रियल इंजेक्शन दे दिए और 3 दिन बाद जब कल्चर की रिपोर्ट आएगी तो फिर आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग पहले देते थे इरिगेटिंग सॉल्यूशन में एंटीबायोटिक ऐड करते थे। उसमें प्रॉब्लम ये थी, एक तो पता नहीं चलता कि कितनी मेडिसिन आई के अंदर गई। इतनी बड़ी बोतल है, कोई थोड़ा इस्तेमाल कर रहा है सोल्यूशन, कोई ज़्यादा कर रहा है। सो ये प्रैक्टिस इतनी साइंटिफिक नहीं है। इसी तरह एट द एंड ऑफ ऑपरेशन जो लोग देते हैं एंटीबायोटिक स्टीरॉइड इंजेक्शन, उसमें पता नहीं चलता कि कितना इंट्राओकुलर गई है, इसलिए वो भी अनप्रेडिक्टेबल। सो ये जो प्रैक्टिस है टू गिव सेफुरॉक्सीन 1 मिलीग्राम एट द एंड ऑफ ऑपरेशन, ये स्टार्ट हुई स्वीडन में और ESCRS एंडोथेल्माइटिस स्टडी ने इसको अपने प्रोटोकॉल में शामिल किया 2006 में। तो इनके ये रिजल्ट थे कि एंडोथेल्माइटिस 5 टाइम्स डिक्रीज होता है अगर आप पोस्ट ऑपरेटिवली ये डालते हैं हर केस में। तो ये इन्होंने तो स्वीडन में भी लाखों बंदों में डाली और तो सेफ है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये कमर्शियली अवेलेबल नहीं है। तो फार्मेसी बनाती है, कभी वो ज़्यादा ड्रग की बना सकती है गलती से, कभी कम पड़ जाए, तो ज़्यादा अगर पड़ जाए तो उसके साइड इफेक्ट्स हैं। डिस्पेंसिंग में प्रॉब्लम है। तो एस्पार्टू फिलीपीन से है, इसने अपाओ जो लाहौर में हुई थी उसमें पहली दफ़ा प्रेजेंटेशन ये दी कि मॉक्सीफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप जो है उसमें प्रिजर्वेटिव नहीं है, वेगामॉक्स आई ड्रॉप। इसको आप बॉटल से लेके आप इंजेक्ट कर सकते हैं और उसमें स्पेकुलर माइक्रोस्कोपी की कॉर्नियल फोटोग्राफ दी सेफ है और इफेक्टिव है। सो बहुत सारी स्टडीज आई जिसमें उन्होंने कहा कि मॉक्सीफ्लॉक्सासिन जो है वो एट द एंड ऑफ ऑपरेशन अगर आप 0.1 ml डाल दें तो वो सेफुरॉक्सीन के इक्वली इफेक्टिव है। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम है कि अगर कोई गलती से मॉक्सीफ्लॉक्सासिन की दूसरी कोई और चीज़ डाल दे वो टास हो। सो ये इसमें यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन में फ़र्क है। यूरोपियन क्या कहते हैं कि जी हमारी स्टेरिलाइजेशन बहुत अच्छी है, सो वी डोंट यूज प्री ऑपरेटिव एंटीबायोटिक्स एंड पोस्ट ऑपरेटिवली दे यूज ओनली क्लोरोफेनिकोल आइटम्स, वो जो हम 20-25 साल पहले इस्तेमाल करते थे, जो हम समझते हैं कि इतने इफेक्टिव नहीं है। वो कहते हैं हम एंटीबायोटिक्स पे रिलाई नहीं करते, हमारा स्टेरिलाइजेशन ही बहुत अच्छा है। नॉर्थ अमेरिकन USA और कनाडा, वो जो यूरोपियन है वो उनको फॉलो करते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले और UK वाले। जबकि नॉर्थ अमेरिकन जो है ना वो कहते हैं कि जी आपने आंख बचानी है, आप सबसे अच्छी मेडिसिन दें, प्री ऑपरेटिवली मॉक्सीफ्लॉक्सासिन या कैटीफ्लॉक्सासिन एंड पोस्ट ऑपरेटिवली फॉर 2 वीक्स मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, ये उनका प्रोटोकॉल। सो हम आमतौर पे प्री ऑपरेटिवली देते हैं, 1 डे बिफोर सर्जरी शुरू करते हैं। एक ये हो गया एंटीबायोटिक हो गया, नॉन स्टीरॉइडल हो गया, और डायबिटिक्स में हम हफ्ता पहले शुरू कर देते हैं क्योंकि उनमें चांसेस ज़्यादा हैं इन्फेक्शन होने के। जिस तरह इन्होंने बताया कि जिस सर्जरी में विट्रियस लॉस हो जाए उसमें एंडोथेल्माइटिस का रेशो 5 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है, उसमें आपने विजिलेंट हो गया। और किसी केस में अगर कॉम्प्लिकेशन हुई हो तो कभी ये ना समझें कि जी एंडोथेल्माइटिस हो गया एक आंख का। पिछले दिन मैंने एक पेशेंट देखा तो जी सर्जन की
उनका कसूर है, सर्जन का कसूर नहीं है। वो हो सकता है होस्ट फैक्टर्स ऐसे हैं कि वो बंदा ससेप्टेबल है इन्फेक्शन में, आप करें और आपकी भी एंडोसल्फाइटिस हो गई। सो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। अब बाकी रहेगी जो इसकी ट्रीटमेंट है। अब अर्ली डायग्नोसिस और मैनेजमेंट के हवाले से ड्रेसिंग कितनी देर बाद होती होनी चाहिए या एक ट्रेंड है ओवरऑल पे नो ड्रेसिंग? तो कोई देखिए हर ऐसा कोई रोल है? हमने ये देखा होता है लिटरेचर में कि कोई रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल इस टॉपिक पे हुआ है कि नहीं हुआ। तो ऐसा कोई रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल नहीं है कि जी ड्रेसिंग ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी। बस वूंड एट द एंड ऑफ ऑपरेशन एयर टाइट होना चाहिए। बस आप पैड लगाएं ना लगाएं, शील्ड लगाएं ना लगाएं, इसकी इम्पोर्टेंस नहीं है। तो हम नॉर्थ अमेरिकन को फॉलो करते हैं, तो हम पोस्ट ऑपरेटिव एंटीबायोटिक्स 2 वीक्स के लिए देते हैं। लेकिन सर सॉरी लेकिन जैसे ना यहाँ पे तो 24 आवर्स के बाद टॉपिकल एंटीबायोटिक शुरू होती है, और जैसे एक जगह पढ़े थे कि जरूरी है कि आप 24 आवर्स के लिए इंतजार करें, इट्स बेटर कि आप अर्ली पोस्ट ऑफ एंटीबायोटिक शुरू करा दें। देखिए हम ये जो डिस्कशन करते हैं ना वो ये है कि आइडियली क्या होना चाहिए, बाकी हर जगह इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो होती है। तो सो यू आर राइट, रिकमेंडेड यही है कि एंटीबायोटिक्स शुड स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल आफ्टर द सर्जरी। कई लोग तो ऑपरेशन के बाद शुरू करा देते हैं 2 अर्ली 4 अर्ली मोक्सिफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप्स। सो दिस इज आइडियल। बाकी आप हर जगह पे लिमिटेशन होती हैं जैसे भी। सबकंजक्टिवल जो दे रहे होते हैं, हाँ, सबकंजक्टिवल एक दिन उसका इफेक्ट तो रहता है कि हम उस दिन सटीक होने और ड्रॉप्स सबकंजक्टिवल में सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि हमें ये पता नहीं होता कि कितनी डोज इंट्राऑक्यूलर गई है। तो इसलिए इस पर भी कोई रैंडमाइज नहीं हुआ। कोई ऐसी जिस तरह पाउडरिन आयोडीन सॉल्यूशन का है कि जी वो प्रिवेंट करती है, ये सबकंजक्टिवल में हमें पता नहीं है। क्योंकि अभी ड्रॉपलेस कैटरेक्ट सर्जरी जो नई रिकमेंड हो रही है उसमें ये है कि आप डिपो फॉर्म में कैमरल या इंट्राविट्रियस ट्रांसजोन्युलर या इंट्राविट्रियल इंजेक्शन दे दें स्टीरॉइड का और एंटीबायोटिक का, ताकि आपको बाद में ड्रॉप डालने की ज़रूरत ना रहे। तो ये भी एक लेटेस्ट इनोवेशन आ रही है। सो जो इसकी ट्रीटमेंट में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वैकोमाइसिन हम ज़रूर ऐड करते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ग्राम पॉजिटिव है 1 मिलीग्राम या 2 मिलीग्राम, और इसको हम रिपीट कर सकते हैं आफ्टर 48 आवर। इससे पहले नहीं करते हैं क्योंकि ज़्यादा कंसनट्रेशन हो जाए। तो वैकोमाइसिन का एक साइड इफेक्ट है, क्या है? गुड, HORZ, हेमरेजिक ऑक्लूसिव रेटिनल वेस्कुलाइटिस, HORZ। तो इसलिए वैकोमाइसिन को हम सोच समझ के देते हैं सिर्फ उस केस में जिसमें एंडोथर्माइटिस हो जाए। प्रोफाइलैक्टिक यूज क्यों नहीं करते वैकोमाइसिन का? इसलिए कि इसके अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस ना डेवलप हो जाए, क्योंकि कई एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप होती है। तो रूटीन यूज नहीं करते हैं, सिर्फ एंडोथर्माइटिस के लिए रखते हैं। और सेफ्टाजिडीन साथ रखते हैं ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो फल्मिनेट करते हैं ना एंडोथर्माइटिस, वो भी यू कांट डिफरेंशिएट फ्रॉम द मॉर्फोलॉजी और क्लिनिकल पिक्चर्स वेदर ये ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन है या ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन। उनकी भी ऐसी फल्मिनेट होती है, लेकिन वो करते हैं 5%। सो ये मैक्सिमम हम 2 या कुछ लोग कहते हैं 3 इंजेक्शन देते हैं 48-72 आवर्स के बाद रिपीट करते हैं और क्लिनिकली रिस्पॉन्स देखते हैं। सर पोस्ट ऑफ सिप्रोफ्लॉक्सिन का रोल है पोस्ट ऑफ एंडोथर्माइटिस हो गया है या आप वैसे नॉर्मल। देखिए सारी दुनिया में सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स यूज नहीं होती हैं, ये हमें पता होना चाहिए कि कैटरेक्ट सर्जरी से पहले या बाद में एंटीबायोटिक्स नहीं यूज कराते हैं। लेकिन हमारे सेटअप में हम एक चीज़ में इंक्लूड कि जो मैक्सिमम एंडोथर्माइटिस है ना वो बिकॉज ऑफ पेशेंट्स ओन बैक्टीरियल फ्लोरा है। तो प्री ऑपरेटिवली या ऑपरेशन से पहले हमने कंजक्टिवाइटिस, डेक्रोसिस्टाइटिस, ब्लेफराइटिस, एक्ने रोज़ेशिया, डेक्रोसिस्टाइटिस और कहीं पे भी जिस्म में इन्फेक्शन है वो रूल आउट करनी, ठीक है, ताकि वो आई में एंट्री ना डाले। तो अगर इस तरह का कोई पेशेंट है जिसमें आप सस्पेक्ट करते हैं कि कोई स्किन इन्फेक्शन है, तो बेहतर है कि एंटीबायोटिक शुरू कर दें, या उसको ना करें, 2 हफ्ते लेट कर दें, ट्रीट करें
एंटीबायोटिक के साथ और फिर करें। लेकिन तो सब पेशेंट में वो लिखी आ रही थी कोई इतने बड़े सेंटर में एलआरबीटी है, हम कैसे रेंडमाइज कर सकते हैं किसी को है कि नहीं? इसमें देखिए इम्पोर्टेंट चीज डॉक्टर्स के समझने की है कि इस चीज को आप थोड़ी इम्पोर्टेंस दें कि प्री ऑपरेटिवली आपने अच्छी तरह स्क्रीन करना है कि इस पेशेंट को ब्लेफराइटिस, कंजक्टिवाइटिस, टेक्रोसिस्टाइटिस और कोई स्किन इन्फेक्शन है तो उसको रेफर कर दें, उसको ट्रीट करें, 2 हफ्ते के बाद कर लें, कोई जल्दी नहीं है, इमरजेंसी नहीं है ऑपरेशन का। और इवन ये चीज़ें हमने जो स्टाफ है जो ड्रॉप डाल लो, तो अब सारे लोग आप मुख्तलिफ सेटअप्स में जाएंगे तो वहाँ पे आप जब सर्जरी कर रहे हैं तो आप जो बंदा ड्रॉप डाल लो, स्टेरिलाइजेशन, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और इसमें जो ड्राई हीट ओवन है और जो ऑटोक्लेव है, इन दोनों में इतना टेम्परेचर इतनी देर के लिए आप रखेंगे तो स्टेरिलाइजेशन होगी, वरना नहीं होगी। ये जो हमारी एक अनफॉर्चुनेट रूटीन है ना कि वो कबर्ड खोली, एक इंस्ट्रूमेंट निकाला या रखा फिर बंद कर दिया, वो टेम्परेचर मेंटेन ही नहीं होता 150 डिग्री, इसलिए वो फिर स्टेरिलाइजेशन प्रॉब्लम।